Hello everyone, welcome back to our channel. Thank you so much for clicking on the link to the summary of A Raisin in the Sun. Now, A Raisin in the Sun is a play by Lorraine Hansberry. The play is particularly, the title of the play has been taken by a poem by Langston Hughes. The poem's title is Harlem. Now, within that poem, Harlem, we have this particular line that says that what happens when a dream is deferred? Does it dry or shrivel up like a raisin in the sun? Basically, the title, as you see, A Raisin in the Sun, has been taken from that poem, Harlem by Langston Hughes. Now, about its significance, we would get further into the video. So, firstly, about the playwright, Lauren Hansberry is the first African American female author to have performed on Broadway. And it was an achievement for a female author and a playwright to have her work being performed on Broadway. She won the New York Drama Critics Circle Award, making her the first African American dramatist, the fifth woman, and also the youngest playwright to do so. Her family's real life battle against securing housing inspired the play. Now, if we look at the play, we realize that in fact, the core of the play is about a family that is struggling to find a sense of belonging, is struggling to find a home that truly marks their identity for who they are. And this is also much of an inspiration from her own life, where she talks about that how her family being she's obviously from an African American background, so her family had also struggled to secure a house for themselves, particularly because of the racism and the racial segregation that was particularly prevalent in the United States. She had fought for civil rights, black identity, and against gender injustice. Her works particularly had a lasting impact on black literature and American drama. जो उनके works थे वो पर्टिकुलरली बात करते हैं कैसे ब्लैक आइडेंटिटी ब्लैक लिटरेचर के बारे में अमेरिकन ड्रामास उन्होंने लिखे थे। एट द सेम टाइम वो अपनी आवाज़ उठा रही थी जो भी इनजस्टिसेस होते थे रेसिज्म की वजह से, जो भी एक सेपरेट ट्रीटमेंट दिया जाता था अफ्रीकन अमेरिकन्स को यूएस सोसाइटी में, उसके बारे में उन्होंने अपने वर्क्स के बारे में लिखा। एंड इट कैन बी सेड दैट ऑल ऑफ नॉट ऑल इफ नॉट ऑल बट देन at least some of the works like A Raisin in the Sun had been inspired by her own experiences. So as an author, as an African American author, she was bringing about this African American experience into her works. Now, about the play had been premiered in 1959. Its setting is Chicago. Chicago, I guess, South City में होता है ये play की setting. And then it is genre is like domestic drama है. Much of everything that happens is play में that is within this domestic household. एक family के around ही हो रहे होते हैं उनके साथ events. And then we have the title inspired by the poem Harlem. Harlem एक poem है by Langston Hughes. उसमें एक particularly line आती है. Now, if I tell you a brief about the poem Harlem, now Harlem is particularly a poem that talks about the dreams, hopes and aspirations of people. ये poem ये बोलती है कि क्या होता है जब कुछ लोगों के ड्रीम्स, कुछ लोगों के होप्स कॉन्स्टेंटली डिनाई होते रहते हैं, उनको वो ड्रीम्स उनके पूरे नहीं होते हैं, क्या होता है उन ड्रीम्स के साथ। इसमें काफी सारी इमेजेस दी होती है कि कैंडी की तरह हो जाता है, जैसे क्रिस्टलाइज हो जाता है, या एक रेजिन की तरह हो जाता है। लाइक व्हाट इज अ रेजिन? लाइक इफ यू लुक एट इट, एक it's a fruit, right? If it's a fruit, and if you keep it in the sun, then it becomes dry, and that is when you call it as a raisin. तो वो यही बोलता है कि क्या होता है एक ऐसी ड्रीम को जब वो इतने टाइम तक उसको छोड़ दिया जाता है, वो ड्रीम पूरा ही नहीं हो पा रहा होता है, तो क्या होता है इस ड्रीम में। फिर वो पोयम में कंक्लूजन्स आते हैं कि क्या वो ड्रीम एक्सप्लोड हो जाता है या क्या वो ड्रीम पूरा हो जाता है। सो दिस इज अ ब्रीफ बैकग्राउंड टू द पोयम। एंड सिमिलरली ड्रीम्स, होप्स एंड एस्पिरेशंस के जो थीम्स हैं वो भी इस प्ले में आते हैं। So we can say that the playwright was particularly inspired by the themes and ideas of this poem Harlem by Langston Hughes, and इसीलिए उनका title A Raisin in the Sun has been used for this play.
Now, context of the place again about racial segregation and housing discrimination, which was particularly prevalent कि अमेरिकन सोसाइटी में अफ्रीकन अमेरिकन्स के जो बैकग्राउंड्स, मतलब जो वो लोग होते थे जिनका अफ्रीकन अमेरिकन बैकग्राउंड होता था, उनके लिए इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर हाउसिंग, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर एन इक्वल पोजीशन इन द सोसाइटी, एन इक्वल रिकग्निशन इन द सोसाइटी। उनके साथ हर चीज़ में सेग्रीगेशन होते थे, उनके स्कूल्स अलग होते थे, वो अलग बसेस में ट्रैवल कर सकते थे, अगर बसेस सेम होती भी थी तो दे हैड टू सिट ऑन सेपरेट सीट्स। उनकी इवन देयर हैड टू बी एवरीथिंग, एक सेग्रीगेट कर दिया था उनको कि वो वाइट्स के साथ इंटरेक्ट ना करे। एंड एवरीथिंग, चाहे वो हाउसेस हो, तो जो जैसे यू हैव सोसाइटीज, यू हैव कॉलोनीज, तो नेबरहुड्स में भी वाइट्स नहीं चाहते थे कि ब्लैक्स हमारे साथ आके रहे, उनमें भी सेग्रीगेशन होती थी। तो ये है इस प्ले का कॉन्टेक्स्ट। Now, if we get down to the summary of the play की summary उस point से start होती है कि we have this youngers family। यहाँ पे हमारे पास कुछ characters हैं। We have Mama. Mama is the you can say kind of the head of the family right now. Then we have her children। अब उनके children हैं, we have her son and we have her daughter Benita। तो ये उनके बच्चे हैं दो, एंड हर सन इज ऑल्सो मैरिड। तो उनकी एक वाइफ है एंड उनका एक बेटा है ट्रेविस। तो ये सब है, और उनकी वाइफ का नेम है रूथ। नाउ व्हाट बेसिकली हैपेंस इन द प्ले इज कि जब ये प्ले स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे, उससे पहले एक हमें कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है कि नॉट अ कॉन्टेक्स्ट बट वी आर टोल्ड थ्रू द डायलॉग्स दैट कि जो इनका हेड था इस फैमिली का, हु वाज वॉल्टर यंगर, नाउ व्हाट ही हैड डन वाज कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ मेहनत करी थी एंड उसकी वजह से उनको एक इंश्योरेंस पेमेंट दी जाती है विच इज ऑफ अराउंड 10,000 रुपीज। एंड व्हेन ही इज गिवन 10,000 रुपीज, अब उनकी तो डेथ हो चुकी है, तो ये अमाउंट सीधा उनकी फैमिली को जा रहा होता है। एंड इस फैमिली की बहुत सारी होप्स एंड एस्पिरेशंस होती है कि दे आर फाइनली गेटिंग सच एन अमाउंट, उनको 10,000 मिल रहे हैं। तो दे आर ऑल हैविंग देयर ड्रीम्स, दे आर ऑल हैविंग देयर एस्पिरेशंस कि वो इस अमाउंट को कैसे अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए यूज करेंगे। हर किसी के अलग ड्रीम्स हैं। जो मामा का कैरेक्टर है वो ये चाहती है कि हम इस अमाउंट को यूज करें ताकि इस अमाउंट से हम अपना घर ले लें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, विच इज़ समथिंग दैट मैंने, मेरे हस्बैंड ने भी सोचा था, उन्होंने पूरी लाइफ मेहनत करी इस घर को कमाने के लिए। सो दिस इज समथिंग दैट मामा वांट्स फॉर हर फैमिली। Now, her son particularly has been working as a driver for a white person, probably, and he wants to use the money in order to secure a good profitable business for himself। उसका एक बहुत ही प्रोफेशनल माइंडसेट है। वो चाहता है कि मैं ये सारे पैसे काम में लगा दूँ ताकि आई कैन बी सक्सेसफुल। एंड ही यू नो उस वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कॉन्स्टेंटली ट्राई करता है इन ऑर्डर टू बी एट पार विद द वाइट्स। उसके अंदर ये डिजायर है कि मैं अपनी फैमिली को आई शुड बी फाइनेंशियली वेल, आई शुड बी एबल टू सपोर्ट देम। तो ही इज मोर financially driven and he wants to use the money in order to start up a liquor business. Now we have Benitha. Benitha wants to use this money in order to go to medical college to become a doctor. अब ये particularly जो element है is very different because उस time पे एक African American female के लिए वो भी to desire something, to become a doctor, to desire something जो कि not that's something not very common, right? तो एक अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल के लिए ये डिजायर करना कि वो एक डॉक्टर बने वाज आल्सो अ बिग डील एट दैट टाइम। तो एज वी सी, तीनों कैरेक्टर्स के अलग अलग ड्रीम्स हैं। मामा उसको यूज करना चाहती है सो दैट शी कैन बाय हर होम, जो कि उसके हस्बैंड का सपना था। वो चाहती है कि वो अपनी फैमिली को साथ रखे। एंड देन वी हैव हर सन हु डिजायर्स टू यूज दिस मनी इन ऑर्डर फॉर अ लिकर बिजनेस। एंड देन वी हैव द डॉटर हु वांट्स टू यूज दिस फॉर हर career, who wants to go to a medical college, she wants to become a doctor. Now इस टाइम पे there's also another character Ruth। अब रूथ के कोई अपने individual dreams नहीं है। we can say कि she's a very a typical wife who only wants good for her family।
who only wants good for her husband, who only wants good for what her mother-in-law mama asks for. तो वो एक ऐसा कैरेक्टर है who is particularly driven by the notions of family. तो वो चाहती है कि हाँ, मामा का आइडिया अच्छा है, मामा का ड्रीम अच्छा है एक हाउस लेने का, उससे हमारी फैमिली साथ रहेगी. But at the same time, she is also a very good wife, and she says that, okay, this dream of my husband in which he wants to open up a liquor business, ये भी उसका भी ड्रीम फुलफिल होना चाहिए, because she does not want her husband to get disheartened. Now what happens is, अब वो आता है इंश्योरेंस मनी 10,000 रुपीज का. अब जैसे ही वो इंश्योरेंस मनी आता है, वन मामा डज इज, उसी दिन पर्टिकुलरली रूथ को पता चलता है दैट शी इज प्रेग्नेंट. एंड एट दैट टाइम शी इज स्क्योर्ड बिकॉज शी डज नॉट नो दैट हाउ हर हस्बैंड इज गोइंग टू रिएक्ट अबाउट दिस, हाउ मामा इज गोइंग टू रिएक्ट अबाउट दिस, एंड शी इज ऑल्सो वरीड. अब ये फैमिली एक स्ट्रगलिंग फैमिली है, ओके. सो शी इज वरीड दैट हाउ आर दे गोइंग टू make it a point कि वो कैसे खर्चे उठाएंगे, will they be able to afford a new child in the family because they are barely surviving. तो all of these questions are going around. अब उस टाइम पे रूथ और उसके हस्बैंड की एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है. मामा अपने बेटे को कन्विंस करती है कि तुम अपनी मैरिज संभालो, डोंट लेट योर वाइफ अबॉर्ट द बेबी, लूज द बेबी, तो यू शुड कन्विंस हर टू कीप द बेबी. एंड इस टाइम पे जो उसका हस्बैंड होता है वो बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाता है, एंड ही जस्ट इमीडिएटली लीव्स द अपार्टमेंट. एंड जब मामा ये सब देख रही होती है, सो शी रियलाइजेस that how everything is falling off, and then she thinks that okay, the best use for this money is probably that ये लोग इस मनी को यूज करें ताकि वो एक घर ले ले. उसको लग रहा है कि मेरी फैमिली टूट रही है, तो एक घर से वो फैमिली नहीं टूटेगी. एंड शी गोज ऑन टू बाय अ हाउस, एंड शी बायज अ हाउस इन अ वाइट नेबरहुड. वो एक वाइट नेबरहुड में जाके एक घर ले लेती है, एंड शी इज हैप्पी विद हर डिसीजन. अब क्या हो रहा होता है कि थोड़े टाइम तक इवन रूथ इज वेरी हैप्पी विद दैट डिसीजन, बिकॉज शी फील्स दैट हर फैमिली, अब वो एक फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी फैमिली को बढ़ा सकते हैं. तो व्हाट हैपेंस इज कि नेक्स्ट कुछ टाइम निकल जाता है, बट जो उसका बेटा होता है मामा का, नाउ ही इज फीलिंग वेरी डिसहार्टन, क्योंकि वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था एंड वो धीरे धीरे काम पे भी नहीं जाता, उसका एक रिबेलियस बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है. तो व्हाट मामा सीज इज, उसको बहुत एक रियलाइजेशन हिट होती है कि मैं भी अपने बच्चे के साथ वो कर रही हूँ जो कि हर कोई हमारे साथ करता आया है. नाउ ये क्या चीज है, दैट हाउ दे आर ऑलवेज बीइंग डिनाइड ऑफ समथिंग. उनको हमेशा कोई चीज चाहिए होती है, कोई ड्रीम्स चाहिए होते हैं, तो वो चीज उनको कोई ना कोई डिनाई कर रहा होता है. फॉर अफ्रीकन अमेरिकन, फॉर और फॉर दिस फैमिली इन जनरल, इट कुड बी एन इक्वल आइडेंटिटी, एन इक्वल प्लेस इन द सोसाइटी. एंड दैट इज व्हेन शी रियलाइजेस कि मैं भी अल्टीमेटली अपने बेटे को कोई चीज डिनाई कर रही हूँ, कुछ गलत कर रही हूँ. तो वो जाके जो बचे हुए पैसे होते हैं उस 10,000 इंश्योरेंस पेमेंट से, वो जाके अपने बेटे को दे देती है और कहती है कि तुम कर लो, तुम्हें इससे जो भी अपना बिजनेस शुरू करना है, बट इसमें से थोड़े पैसे अपनी बहन के लिए भी रख लेना. अब जो भाई बहन का रिलेशनशिप है इस पर्टिकुलर प्ले में, दैट इज ऑल्सो वेरी यू नो काइंड ऑफ सिंपल, बट एट द सेम टाइम देयर इज नॉट मच डेप्थ गिवन टू दैट थिंग. जब विनीता बोलती है कि मुझे करियर बनाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो हर ब्रदर सेज कि तुम्हें क्या करियर की जरूरत है, यू शुड जस्ट गेट मैरिड इंस्टेड. इससे बेटर है कि मैं ये पैसे फैमिली में लगा दूं तुम्हारे ऊपर, व्हाट्स द पॉइंट. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अब जो ये मामा का बेटा है, ही सिंपली डिसाइड्स टू स्पेंड ऑल ऑफ दिस मनी ऑन गेटिंग स्टार्टेड विद द लिकर बिजनेस. अब जब वो ये सारे पैसे डाल देता है, तो ही इज नॉट सेविंग अप एनी अमाउंट फॉर बिनीथा टू अटेंड द स्कूल. व्हेन दैट हैपेंस, उसके थोड़े टाइम बाद उनके घर पे कार्ल लिंडा आता है, हु इज काइंड ऑफ अ कैरेक्टर हु इज फ्रॉम द वाइट नेबरहुड. उसके बारे में मच इन्फॉर्मेशन तो नहीं है प्ले में, बट ही इज अ वाइट पर्सन. एंड वो आके इस फैमिली को बोलता है कि जिस सोसाइटी में तुमने अपना घर लिया है, जिस नेबरहुड में तुमने अपना घर लिया है, वो लोग तुमसे वो घर खरीदना चाहते हैं जो लोग वहां रहते हैं. अब नाउ अगेन दिस इज सीन एज अ हाउ द वाइट्स, वो लोग नहीं चाहते, अगर वो घर लेना चाहते हैं इस फैमिली से, तो दिस इट सिंपली मीन्स दैट कि वो नहीं चाहते, कि वो वाइट नेबरहुड नहीं चाहता कि एक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली हमारे बीच में आके रहे. तो वो ये चाहते हैं कि हम ये घर ले लेते हैं ताकि वही लोग ले, हमारे जैसे ही लोग ले, एंड ये अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली हमारे बीच में आके ना रहे. उस टाइम पे ये लोग सब डिनाई कर देते हैं, एंड दे आर कॉन्फिडेंट अमंग्स देमसेल्व्स, एंड दे डिनाई हिम, एंड दैट पर्सन लीव्स. Now what happens is थोड़े टाइम बाद
जो मामा, द कैरेक्टर ऑफ द हस्बैंड, ही इज पर्टिकुलरली टोल्ड, जिसने सारे पैसे उस लिकर बिजनेस में डाल दिए थे, उसका फ्रेंड आके उसको बोलता है कि वो पैसे डूब चुके हैं, वो पैसे जिस पर्सन पे हमने ट्रस्ट किया था, ही हैज बिट्रेड अस एंड ऑल दैट मनी इज गॉन ना। उस टाइम पे ही इज सो टेकन अबैक बिकॉज नॉट ओनली ही हैड नॉट ओनली स्पेंट द money for his liquor business, but he had also spent all of Benita's money, all of her parents, all of his parents' money, and everything जो उनकी ड्रीम्स फुलफिल कर सकते थे, अब वो पैसा सारा जा चुका है। अब इस टाइम पे वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि वॉल्टर को ऐसे लगता है दैट ओके लेट्स जस्ट गो एंड हम ये सारे पैसे जितने भी हैं, हम अपना जो घर है हम वो वाइट्स को बेच देते हैं बिकॉज वी आर इन अ फाइनेंशियल रूइन एंड वी नीड टू डू दिस। बट जब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम ऐसे करने जाते हैं, उसी टाइम पे देर इज अ रियलाइजेशन और देर इज एन इमीडिएट ओवरवेलमिंग फीलिंग फॉर वाटर ली दैट ही डिसाइड्स कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है, मैं अपना घर नहीं बेचूंगा, मैं देख लूंगा कैसे भी होगा, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, लेकिन हम इस घर में जरूर जाएंगे। तो इवन इफ द फैमिली प्ले का एंड ऐसे पूरा पॉइंट पे होता है कि इवन जो फैमिली है उनको एक फाइनेंशियल रूइन आ रहा होता है, उनके साथ फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे होते हैं, दे डू नॉट हैव मनी टू सस्टेन देमसेल्व्स, बट स्टिल दे आर मूविंग ऑन विद द ड्रीम ऑफ गेटिंग अ हाउस, वो एक न्यू नेबरहुड में जा रहे हैं। वी डू नॉट नो कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको नहीं पता कि उनके आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है, but still we see that how this play ends at a point where the family is moving into this new house. नाउ इस प्ले की मेजर थीम्स है, फर्स्ट देर आर ड्रीम्स डेफर्ड डिनाइड, कि प्ले स्टार्ट ही ऐसे पॉइंट पे होता है कि एक कैरेक्टर, देयर इज दिस कैरेक्टर द बिग वॉल्टर, जो इनका मामा का हस्बैंड है, ही इज अ कैरेक्टर जिसने अपनी पूरी लाइफ मेहनत करी उस 10,000 इंश्योरेंस पेमेंट के लिए। उसकी भी ड्रीम्स होंगे जो डिनाई हुए, डेफर्ड हुए कॉन्स्टेंटली ऑल हिज लाइफ, बट स्टिल अब वो ड्रीम्स जाके अपनी फैमिली के लिए पूरे हो रहे हैं। इफ यू सी देन दिस प्ले इज ऑल्सो रनिंग पैरेलल with death of a salesman, where we have this character who had constantly been working hard all his life, but still जो उसके ड्रीम्स थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, एंड इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ कि उसके ड्रीम्स अब उसके फैमिली पूरी करेगी, उनके अब जो फैमिली के ड्रीम्स है वो उसकी डेथ के बाद ही पूरे हो पाएंगे। तो देर आर दीज ड्रीम्स दैट आर डेफर्ड, we do not know if Benita actually becomes a doctor। ये constantly we see कि every person has the desire to dream, every person has this desire to hope for something in life, but constantly एक community के लिए ये dreams डिनाय होते आए हैं, ये dreams external consequences की वजह से community को कभी fulfill नहीं कर पाया। And then we have gender roles. Gender roles, we see the misbalance between characters like Binitha. Binitha की education को उसका भाई बिल्कुल भी seriously नहीं लेता है, and he's constantly, when you talk to a girl, तो एक वो भाई derogatory remark that तुम्हें पढ़ाई की जरूरत नहीं है, you should just get married instead। And we also see that how even Ruth और उसके husband के बीच में हम देखते हैं कुछ gender miscommunications hai, we constantly feel that okay the husband is at a greater power, holds a greater power over their relationship. These kind of gender roles also persist in the play. Now there are familial relations, idea of home. For the family, this idea of home was a fulfillment of their family legacy, like नॉट ओनली ये होम सिर्फ ट्रैविस के लिए नहीं है या सिर्फ रूथ के लिए नहीं है, ये सारे फैमिली मेंबर्स के लिए है। इवन उन फैमिली मेंबर्स के लिए जो जा चुके हैं और इवन वो फैमिली मेंबर्स के लिए जो आने वाले हैं, पर्टिकुलरली लाइक रूथ्स चाइल्ड। तो वी सी कि इस टाइम पे familial relations भी are an important theme when we see that towards the end of the play we have the characters who are walking towards their new home, कि at least they have this idea that okay we are together, we would survive this together, we have a home, we have fulfilled one of our major themes, one of our major ideas, one of our major dreams जो कि अब तक unfulfilled रहे हैं। Then we have racism, racial segregation, the very idea कि उस family को वो घर नहीं मिल रहा था was because of racial segregation। जब वो घर इतने टाइम तक they had been struggling, like
why is it so difficult कि एक सोसाइटी में एक घर लेना, एंड वो घर लेने के बाद भी आपके पास इतनी हर्डल्स आते हैं कि लोग वो नहीं चाहते हैं कि आप वहां आके रहो. ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन स्टिल परसिस्ट. वी सी दैट हाउ इवन जो उसका प्रोफेशन है मामा के सन का, इज लाइक अ ड्राइवर टू अ वाइट पर्सन. सो ऑलवेज in these situations we have these characters who are at a lower position than the white characters. Then we have money, financial influence. One of the major themes again is about that 10,000 rupees payment जो कि दी जाती है. उसी के course पे we see all the major events happening in the play. And now getting down to the significance of the title. Now, a raisin in the sun. It particularly means कि एक fruit को when you put in the sun, when you put in the harsh light, it dries up. And how does it dry up? It dries up particularly after some period of time, after a long period of time, after or maybe even a short period of time, but it is kept in that sun, it is kept to wait. So that is what forms the core of the play कि कैसे क्या होता है एक ड्रीम को जब वो इतने टाइम तक ही डेफर्ड होता रहता है. क्या डज दैट ड्रीम होल्ड दैट सेम सिग्निफिकेंस, वो सेम इम्पोर्टेंस कि इतने टाइम तक एक ड्रीम जो कभी पूरा ही नहीं हो पा रहा है. एक फादर की डेथ हो चुकी है, फिर भी फैमिली स्टिल स्ट्रगल कर रही है उस घर को लेने के लिए, उस घर में रहने के लिए. तो इतना ज्यादा जो डिनाई हो रही है ड्रीम, हाउ इज दैट ड्रीम गोइंग टू बी नाउ, कैसे उस ड्रीम को हाउ आर यू इवन गोइंग टू एक्सपीरियंस इट. तो ये title particularly speaks up much for the very events that are happening in the play. जो भी familial dynamics है, कैसे उनकी ड्रीम्स जनाए होते हैं. We do not know that how long they would have to survive in this financial ruin, because play के end में we do not know कि अब family के साथ आगे क्या होने वाला है. We just know that they are moving into this new house. Similarly, a raisin, a raisin is formed when this fruit changes its shape. तो कैसे इवन इफ अगर वो रेजिन भी बन गया है, अगर वो ड्रीम फुलफिल भी हो गया है, so it had to face that transformation. It had to go through a long period of wait. So this was the